थोड़ा दिया लगा दूँ। दिया तो लगा दूँ। मोबाइल कर दो। नीचे ले लो। थोड़ा पीछे आ जाओ। आप इधर खड़े रहो, मैं हाँ वो साइड में खड़े रहिए। हाँ हाँ हाँ। एक पेट्रोल लगा दो। हाँ हाँ लगा लो तो। अच्छा लगेगा। दादा का ही आशीर्वाद है बस, और क्या बोले, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। दादा ने बोला था ये करने के लिए, मेरे को इतना अच्छा गाता है, इंटरनेशनल म्यूजिक और एग्जाम दे रहा है RSL में, लंदन स्कूल ऑफ बोला था कि ऐसा करो कि ऐसा करके यूट्यूब में डालो, so that दादा ही नहीं है आज। क्या बोले, ऑफ कोर्स दादा की इच्छा पूरी करते हैं। दादा बहुत रेगो को बहुत ही आशीर्वाद दिया है और वेरी ब्लेस्ड। यस यस, दादा का ये वो भी मार्गदर्शन था, वो स्टार्ट इसलिए कर दिया था आपको भी सब पता है। नया फिल्म भी जल्दी रिलीज होगी अभी मार्च में। यस यस लाइटर सर भी लेना तो इनको एक साइड। सर आप ये साइड में प्रतीक आप पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे इकडे ये ना शिकून का तुला भेटणार आहे। आप इधर आ जाइए। उधर से चलो ना, चलेगा सर, वो बाजू आ जाइए थोड़ा। जय राम जय राम जय राम जय। रवि हो गया, चलना। एसी है ना। अरे ये तू मैचेस दो ना कोई अच्छा वाला। अरे लाइटर तो कोई तो लाइटर। यहाँ पे सर, यहाँ पे स्माइलिंग लाइक दादू ओनली। अरे वो उल्टा है, इधर ही जो क्या मैम कैन जस्ट कम ऑन वन फॉर लो किया हाँ यस। थोड़ा नियर यहाँ पे। यस सर। सर यहाँ पे Rego, one is my camera. Everyone looking this. थैंक यू। मतलब मुझे तो याद है कि शायद मेरा स्कूल का होमवर्क ही सबसे बड़ी टेंशन थी, मगर to become a rock star is I think definitely an achievement. So well, global sensation Rego B, 13-year-old, first and youngest Indian artist creates an album of global chart busters. जोरदार तालियां Rego B के लिए. Please Rego come on stage, have your seat. And इनके बारे में अभी मैंने सिर्फ शुरुआत की है. Believe me, there's so much into this list. Rego, please आप यहाँ पे आ जाए. Come to the center. It's all yours, please, man. So well, इनकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है. So मैं चाहूँगा आप ध्यान से सुनें. With the blessings of his late grandfather, disco king Shri Bappi Lahiri ji, he launched the first song in album titled Superstitious X-Rego. All the songs in the album are covers of global chartbusters. Rego happens to be the first and the only singer in India who has introduced this unique concept. जोरदार तालियां मार दीजिए इस unique concept के लिए जो Rego ने इतनी कम उम्र में, महज 13 साल की उम्र में की है. Short at the age of 13, ruling the charts already, Rego B.
to say that the little kid, Rego B, also known as Swastik Bansal, shares an uncanny resemblance with the music maestro, late Shri Bappi Lahiri ji. वो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल. Rego is just 13, stormed the Indian music scenes with a single Bacha Party. So, जोरदार तालियां बच्चा पार्टी. आई थिंक बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, बच्चा पार्टी ऐसा ट्रैक है जो हर जगह बज रहा है, धूमधाम से बज रहा है. And yes, which crossed, I think, 5 billion views, more than that, and a very confident appearance with grandfather on Salman Khan's Big Boss, Sare Ramappa, Dance India Dance with Madhuri Dixit, and Indian Idol, where he sang Disco Dancer. I know ye suspense, surprise aapke liye yahan pe bhi rahega, don't worry. Rego also started singing at the age of 2. Credits his grandfather for his interest in Western and classical music. महज 2 साल की उम्र में इन्होंने गाना सीखा था. शायद उस उम्र में बच्चा माँ बोलना भी ढंग से नहीं सीख पाता. He's born in a family of musicians, of course we know it. When he was to started his training in music from his mother and grandfather, Rego was studying music from RSL Rock Music of London and taking professional training as a singing and music coach. He was also coach of Katy Perry, Ed Sheeran, and many more. क्या बात है. That's like really amazing. So I'm sure इतनी ज़्यादा music की knowledge with the legends all across, I'm sure it's going to be a big thing. You have definitely a brightest future, and we can already see that at the age of 13 you're doing wonders, man. Thank you, sir. And also, there's also some bhajans, shloks, Ganesh Vandanas, Hanuman Chalisas. His favorite Bollywood artists are Arijit Singh, Badshah, and Raftaar. From the age of 4, he started performing live on stage with his grandfather, Bappi Lahiri ji. Apart from Bacha Party, he has also lent his outstanding vocal to Football Is My Dream in 2018, Kal Chutti Hai 2021, and many more. Taking the musical legacy forward, Rego is the 4th generation of musician, and every family is over that this 4th generation who started so young, just at the age of 13. And of course, all thanks to parents. जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे इनके फादर साहब गोविंद बंसल जी को. जोरदार तालियां for this man, this producer. Warm welcome Govind ji. The stage is all yours. Please आप विराजमान हो जाइए. And of course that lady who's always at his back, रीमा lahiri जी की जोरदार तालियां हो जाए. I think हर एक माँ का, हर एक बाप का सपना होता है कि उनका बेटा बहुत अच्छा करे, and I think he's already doing wonders, and what he's done is commendable, as we can all see. So, मुझे लग रहा है कि हमने इतना सारा आपको रेगो के बारे में बताया. बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे और बहुत सारी चीजें आप शेयर करना चाहते हैं, है ना? So, shall we play AV first या फिर सवाल जवाब किए जाए? Let's play AV first. So, let's have the music and lights off, please. I think life में जो भी है, I think it's all because of blessings जो आज रेगो is blessed with. So इसी के साथ हमारी अगला जो गाना देखेंगे वो बहुत ही में आपको बता दूं कि इनकी जो फिल्म है खूबसूरत पड़ोसन वो जल्दी रिलीज होने वाली है, and she's playing the leading lady in that. So yes, and before we have rounds of question and answer, मैं चाहूंगा कि जी Lahiri ma'am, how does it feel to see Rego perform in front of the whole world now? Rima. Well, आशीर्वाद है पापा का, जो उनके ही हम बच्चे के बच्चे 4th generation on the block right now with music. और रेगो को भी वो चीज़ बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है बचपन से. डैडी का उसके ऊपर बहुत आशीर्वाद है और बहुत ही उनको ट्रेन भी किया है. और बचपन से रेगो का एक दादा को देख के वो बड़ा हुआ है, दादू को देख के बड़ा हुआ है. वो ऑलवेज चाहता है कि वो अपने दादू जैसा वो ग्लैमर, ग्लिट्स और शो और म्यूजिकल हो, रॉक स्टार हो बने. और दादा को भी बहुत ही वो था कि नहीं, अगर रेगो को बनना है तो बस कराओ उसे ट्रेन. तो बहुत ही कम उम्र से उसको 2 साल की उम्र से दादा ने ही उसको बोला है कि चलो ट्रेनिंग शुरू करो, जब उसको इसमें इंटरेस्ट है, पैशन है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है और जुनून है, उसको बनना है बड़ा, तो वाई नॉट. तो वो सोच के मैंने डैडी के
अच्छे कदम पे आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड विद रेगो। बहुत ही कम उम्र से उसको गुड कोचेस, ट्रेनिंग म्यूजिक की, क्लासिकल, वेस्टर्न, पर उसको ज़्यादा वेस्टर्न क्लासिकल में ज़्यादा उसका शौक था बचपन से। तो इसके लिए वी पुट हिम इनटू RSL स्कूल ऑफ लंदन। अभी कल ही उसका एग्जाम था फॉर ग्रेड 6, अभी 2 years ही है ग्रेजुएट। एंड यूवी बर्नर जो उसका कोच है, शी इज़ अ वेरी इंटरनेशनल यूके कोच ऑफ एक्चुअली, एंड ही इज बीन डूइंग दिस ऑनलाइन। एंड देन अब हम लोग लंदन जाते तो वो लेती है क्लास, 5 साल से उसे सीख रहा है। तो उसको बचपन से ही हम लोग ने म्यूजिक में ही डाल दिया है, बिजी कर दिया है। और रेगो के अंदर वो चीज़ है, करना चाहता है वो, कि द होल फैमिली इज विद हिम, एंड अबव ऑल दादा's आशीर्वाद इज देयर। बंद कर दूं? No, but without the mic, because it will be audible. तो अच्छा, तो बचपन से ही बस अभी म्यूज़िक में, अभी फर्स्ट उसको सारेगामा में ही हैड अ बिग ब्रेक व्हिच ही गॉट इट ऑन हिज क्रेडिट, बच्चा पार्टी के लिए, जो उसका ऑडिशन हुआ 100 बच्चों में से, एंड उसको चुना गया, और दैट्स हाउ बच्चा पार्टी केम इन द फोकस। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड दादा अपने आप ही उसको अपने टैलेंट में ही उसका एक शुरू हो गया, which we are very happy and fortunate to God and to all that he got such a big break from Saregama at the age of 12 years. और बच्चा पार्टी भी बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट इतने कम उम्र का लड़का जो अपने फुल प्रोफेशनल एल्बम सारेगामा विद राहुल शेट्टी, रेमो फर्नांडिस, पूरा एक ग्रुप जो था, तो उसका वीडियो हुआ। दादा ने भी एक कैमियो किया था, बच्चा पार्टी में डेब्यू किया, और इट वाज अ बिग सक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर इनटू द म्यूज़िक। एंड नाउ ये आइडिया जो है, जो आप लोग देख रहे हो, दैट इंटरनेशनल कवर्स का जो उसने 9 गाने का किया है, वो आइडिया भी दादा ने ही दिया था, कि जब रेगो इतना अच्छा गा रहा है बचपन से, व्हाई नॉट शो हिज टैलेंट टू द वर्ल्ड। सो इसके लिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट सोचा कि चलो करते हैं। रेगो का जो वेस्टर्न एक कलर है उसका, वो हम इंडियन पब्लिक एंड वर्ल्ड को दिखाए। देयर इज एन इंडियन चाइल्ड हु सिंग्स दिस टाइप ऑफ, एट दिस एज he sings this type of songs, and he's taking a training, you know, of course Bollywood का तो है, पर इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एक पोडियम में हम लोग ने सोचा कि ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं रेगो को इन अ डिफरेंट, रेगो एज अ इंडिविजुअल रॉक स्टार, रेगो भी, दैट्स हाउ। मतलब 13 साल की उम्र में वो करके दिखाया, जो लोग 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी सोचते हैं। कमेंडेबल जॉब एंड वेल सेड रीमा जी। जिस उम्र में हम लोग माँ बोलना सीखते हैं 2 साल की उम्र में, रेगो ने बोला सारेगामा। जोरदार तालियां आवाज से फॉर रेगो। एंड ऑफ कोर्स गोविंद बंसल जी, फादर, मैन बिहाइंड बैकबोन। So how does it feel when you perform, when you see Rego perform in front of the whole world now? एक्चुअली में क्या है, इसके स्टार्टिंग से ही दादा की भी स्टार्टिंग से ही दादा के गाने शो में वगैरह में जाता था। इसमें अंदर से एक अलग बात थी। दादा भी बोला कि यार इसमें कुछ तो है, गोविंद इसको कुछ, इसमें कुछ म्यूजिक में इसमें जानने की इच्छा है, इसको लॉन्च करना है। अभी 1-2 साल पहले मेरे को बोला, मैं जरूर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले एक सारेगामा की तरफ से अपने आप इसको एक ब्रेक मिला। तो दादा की जो इच्छा थी कि लॉन्च करना है, तो हमने एक इसको जिसमें ज़्यादा शौक था इंटरनेशनल में, इंग्लिश में, तो एक एल्बम 9 गाने का हमने लॉन्च करने का प्लान किया। तो इसका भी एकदम क्रेजी रहता है गाने के प्रति। हम लोग पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि बच्चा जो इसमें जाना चाहता है उसमें आगे बढ़ाने की इच्छा है, सपोर्ट करें, सपोर्ट करनी। तो वही हम लोगों को अच्छा लगता है और फील गुड होता है, आप सबका एंटरटेनमेंट करें। क्या बात है। ऐसे में लेट्स हियर फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। आई नो आपको बेसब्री से इंतजार है रेगो से बात करने के लिए, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि मिसेस पप्पी लहरी जी, मैम आप बताएं, बिकॉज यू नो योर 4th generation has come out finally and is doing wonders already, as we can see. So what do you have to say now? That's I think the blessing of God and the great man sitting here. It was all his wish. So Always there. he's been blessed by him. So I think he'll do very well in life. I think he'll go far away. All my blessings to him. He's a very talented boy, very, very talented, I feel. Because I have seen the world of music from a very small age. I've been into the music with him. He's a very talented guy, very, very talented. He picks up things like this. So he had an exam yesterday from London. He was sent person
he worked so hard. He was cent% given. The teachers were so happy with him. Let's see now. Everything is in his hands. I'm sure already he is. And his hands. He Absolutely. will bless from there. He'll definitely become very big. Very good. And the legacy Thank you so will much. go on, the legacy. I His think legacy should bless, that's it. definitely, I think जितने भी parents देख रहे हैं, goosebumps और everybody जोरदार तालियां for what ma'am has beautifully said. I think it's definitely God's blessing which is there. And वो talent जो है fourth generation में वो मतलब फूट के भरा है वो हम देख सकते हैं. Rego B is already rocking the charts. You all over man. The man himself, Rego B. Let's hear from the horse's mouth. Rego की जोरदार तालियां आ जाए मेरे rockstar. Rego 13 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में आपने सारे गामा बोलना शुरू कर दिया और 13 साल की उम्र में वो कर रहे हैं जो लोग 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी सोचते हैं. What you have to say, मतलब what all you do, पढ़ाई भी कर रहे हो, वहाँ पे टॉपर भी हो, at the same time म्यूजिक में आप कुछ लॉन्च करते हो, मिलियंस पार कर जाते हैं, ये सब कैसे कर लेते हो यार? ऐसी चीजें जो आप नहीं कर पा रहे हो. मैं सब कर पा रहा हूँ बट मैं सब कर पा रहा हूँ बट ये जो हुआ प्रोजेक्ट 9 गाने का this would have not been done if my mom and dad would not be by my side, and it's happened because of them only. They are my backbone, 2 backbones always sitting behind me and always telling me to do more music and to do more practice, to work hard and to take Dadu's legacy forward. And I handle music and studies both 50-50 because studying is also important and music is very very important. That's the main thing. And I want to thank everybody who have the whole team of these 9 songs and I want to thank Rego B band, my mama Bappa Lahiri who's directed it, and Abhishek Basu, the man sitting there, the DOP of the video. And I'm very excited that this is coming right now to y'all, and I hope y'all love my music. And please support me, please love me, please subscribe to my YouTube channel, Rego B Official. Thank you. Also, एक सवाल ये है कि आपके गाने का जो नाम है, एल्बम का नाम है सुपरस्टिशियस है, so आपको भी सुपरस्टिशियस है गाने से पहले कि ये नहीं करना, जैसे अक्सर मोहम्मद अजहरुद्दीन एक ताबीज पहनते थे मैच खेलने से पहले, तो कुछ आपका भी ऐसा है? मेरे I have a bit of superstitions with me, and that's why because the song is originally done by Stevie Wonder, or he's my idol and he's my most favorite singer of all time, and I love his music. So मुझे लगा that why not I can recreate his most hit song Superstitious. So I got the idea, let's recreate the song. क्या बात है. और एक आपकी स्टेटमेंट जो बहुत वायरल होने वाली है, तो बहुत समझ के बोलिएगा कि अक्सर पेरेंट्स ये चीजें देखते हैं और वायरल करते हैं और अपने बच्चे को बताते हैं कि देखो कैसे पढ़ रहा है. So because you're 13 and you're doing great in academics that we all know, at the same time doing wonders with numbers on YouTube. So कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई और संगीत? बहुत वायरल होने वाला है. पढ़ाई और संगीत को बहुत स्ट्रिक्टली लेता हूँ मैं, और पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने बोला 50-50 I have to do everything and I have to balance everything basically. And मैं गाने के ऊपर मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ. मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ 3-4 घंटे, गाने में घुसा रहता, पढ़ाई करता हूँ, होमवर्क सब करना पड़ेगा. और basically music is only my key to success, and I have to do more music. I have to take my grandfather's legacy forward. Yeah. Wow. Yes, superstitious तो है. फिर हमारे डैडी भी बहुत ही spiritual और superstitious थे. But we are also very superstitious. जैसे we don't cut our nails and वो cat आ जाती है तो those normal घर घर की कहानी वाले जो है superstitious. पर हाँ, जैसे सुबह उठ के भगवान का ही फेस देखते हैं, हम प्रे करते हैं, दिन शुरू करते हैं. जिस दिन बाई चांस नहीं देखते तो ऐसा क्यों हुआ, जरूर मैंने नहीं देखा होगा. That type of things. Of course, we all have that within us. मिसेस लहरी जी, मैम आपको कुछ ऐसा लगता है सुपरस्टिशंस आपको कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए? हाँ, हम सब में घुसा दिया है इन्होंने. इनका बहुत था सब चीज़ में, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं. As he taught us to do all that, even we have come into. But I so much don't believe in stones and things like that. But he used to believe a lot of stones and things. So, Yes, absolutely. On little that bit we note, have to. On that note, I'd like to call upon stage Mr. Mukesh Modi ji from Hollywood. जोरदार तालियां हो जाए, please. Sir, आप stage पे आ जाएं यहाँ पे.
also like to call upon stage Mr. Rahul ji. जोरदार तालियां हो राहुल जी के लिए. Rahul ji, please आप मंच पे आ जाएं. ऐसे राहुल जी प्लीज आ जाइए. So ऐसे में आपसे सवाल है, आप लीडिंग लेडी आने वाली फिल्म की नई प्रोड्यूसर की. What do you have to say about Rego? You know, when you see such a talented guy performing, at the same time, आप भी superstitious हैं? रेगो के बारे में तो बोलने के लिए बहुत कुछ है. They are like my family, you know, Govind sir, Rima Didi, ma'am, Rego, and I'm doing their film. So we just finished our first schedule. So Rego is such a super talented guy. I think, I mean, you know, he is going to be like next Justin Bieber of. Yeah, seriously. You know, I feel that he has this thing in him. He's like super talented, and yeah, I'm here to, you know, wish him all the luck. He has all the support, but you know, I'm here. And also मैं आपको बता दूं, अनुषी सरकार जो है, she is going to be the leading lady of sir's next film that's called खूबसूरत पड़ोसन. SRG film. SRG film, of course, तो हम सब जानते हैं. It's Anusmriti Sarkar, not Anushri. My name is a little difficult name though. Yeah. So yeah, tell us about this film. क्या होने वाला है? So film के बारे में पता नहीं अभी बोल सकती हूँ कि नहीं. I have to take the permission from my producer because he has asked me not to Producer say. का हाथ है बुरा, बोलिए. ये promotion के भी छोड़ना नहीं चाहिए. So we just got back yesterday only from his first schedule of Khoobsurat Padosan. And what a beautiful timing. इनके साथ जो दूसरी leading lady है फिल्म की, that's ऋतुपर्णा सेन गुप्ता. One of the most successful actors of Bengali cinema. She wrote the crest of her box office success in the late 90s. Our national award winner, a Filmfare award winner. ऋतुपर्णा जी जोरदार तालियां. सामने पड़े ना. Please, brother. Yeah, sorry. Please continue. So yeah, we just finished, and of course we are doing the film together, me, Rituti, and they're launching a hero. You know, a lot of actors are there in this film, Rajpal Yadav and a lot of people. So yeah, Govind Namdev. Yeah, Govind Namdev ji. So Khoobsurat Padosan is a beautiful story, and I hope people will like it. So yeah, and today is Rego's day, so we should talk about Rego only, I guess. So let's talk about Rego and Superstitious. नहीं उनकी फिल्म भी आने वाली है, उसका भी प्रमोशन जरूरी है. And Rego sang a song in this film. अरे वो तो पता ही था, वो सरप्राइज एलिमेंट था, वो भी डिस्क्लोज नहीं करना था. प्रिया, थैंक यू सो मच. मिस्टर मोदी जी, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ विराजमान हो जाएं. थैंक यू सो मच. And I would like to congratulate Rego, and because it's his day, so we need to celebrate and congratulations and good luck to you for rest of your life and all your projects. Thank you. Thank आपका सुपरस्टिशन की वही बता दें. Don't like superstitious you think? See, like me also believe I don't shave and haircut on Saturday. अच्छा ये शनिवार को काला कपड़ा पहना है, to wear black on Saturdays. ये किसका है? वेजिटेरियन खाते हैं हम. आपका भी ऐसा है. वेजिटेरियन. Vegetarian also. Yeah, very. Thank you, Mr. Mohan. Please, thank you so much. Anup, thank you. And Ritu ji क्योंकि हमारे साथ हैं, and आज सभी रेगो के लिए बहुत excited हैं. So what you have to say? I'm sure ये गाना तो आपने देखा ही है. So Of course, I have so many times I've seen it. First of all, I want to start the evening by touching. Yeah. He's the source of everything. Yeah, the source of everything. I think definitely his blessings are there with us. And yes. Today I am extremely excited. Today I am extremely excited because our boy Rego B's music is getting launched, and nothing can be better than this. And today is such a nice day because you know, lot of hard work, lot of toil, lot of desperation, and lot of perseverance has gone into it.
And I will not only congratulate him, but I will congratulate his parents as well. Rema and Govindji, they're such ardent and beautiful parents that they've given him such parvarish, such beautiful learnings of life. He has become a rock star already. So a big hand for our boy, and I just want to mention that today I'm deeply missing Babida because he is the source of inspiration, love and happiness for all of us. Today we have his representation through our beloved Didi, Chitranidhi, who has been a very strong personality to hold the family together and give everybody the right kind of lessons and the blessings. You know, whatever she's done for this family, I am a member of this family, I am part of this family, so I know she has been like, she's worked with strength to strength to make everybody's success a big story. Isn't it, Remo? Of course. Very well said. And so today, Rego, you are the next best thing here. You have to make it very, very big. Thank you. And we are all very excited to know that he has already become so popular. It's not only here, but all over the world, his songs are ringing. So I am very excited about this project. Thank you so much, Ritu. Thank you. On that, I would also like to call upon stage Mr. Abhishek Basuji. Please, जोरदार तालियां हो जाए. He is the man who's been the backbone throughout the event, putting in a lot of energy into that. Please come on stage. We are missing Bappa today also. Yeah, Bappa has missed a lot. So that's with us, Abhishek Basu. And Rego के बारे में एक चीज जो मैंने personally देखी और मैं भी जितना जानता हूँ, I think no matter how many views is getting, fetching on YouTube or wherever, despite the shows, I think he is one humble and grounded person and nothing affects him. So well, I think जोरदार तालियां once again for everybody who is here. And of course, इसके बीच में entry की है यहाँ पे Sense rapper ने जोरदार तालियां उनके लिए. Sense rapper, please come on stage. आपकी हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं और आपकी स्वेच में टाइप ट्रू. Govindji, I request you please come on stage. Govindji always on Sense, please come on. Hi. I'm so sorry for being late, but traffic seems. No issue. I think ये कहीं माफ होना हो मुंबई वालों को माफ रहता है. So, रितु जी हम सबका एक सुपरस्टिशन पूछ रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं ना. आज मुझे लगता है कि रेगो का भी ब्लैक है सैटरडे को पहनने वाला है ना. Because रीमा जी की ब्लैक पहना. I'm also wearing black. And Parul is wearing white only. All black. So, besides all this black and white, what is your superstition? Mine are many. Today I'm a vegetarian on Saturdays, and Tuesdays I'm a vegetarian. Then you know, if a cat goes by, Yeah, same I with stop my myself. car and then ask for blessings. Then if somebody puts one finger in the eye, I will say put two fingers. So many are there. Right, amazing. Coming on to Abhishek ji. Abhishek ji has been the, I think, backbone supporting Rego like anything. Abhishek, what do you have to My say? kid, I asked Of course, of course. no options. So how does it feel when you see the song and then Rego come forward? And I actually, frankly speaking, if I tell you, when we were very scared, our kid is right in front of our camera, and I would give 101% credit to Bappa. So we planned according to him that how we going to shoot it. So we said कि यार एक बार देखते हैं कैसा लगता है, कैसे परफॉर्म करता है. Let's do a rehearsal with it. And ये वैसा था कि ना अनिल कुंबले का गूगली. तो basically तुम्हें पता नहीं कि अनिल कुंबले next ball क्या डालने वाला है, and it goes googly like thap thap and you are out. So frankly speaking, if you see a first song footage of Superstitious, that we put the camera on, we recorded the camera, it was rehearsal for me and Bappa. But it was okay take. Then Bappa looking at me, I am looking at him. Are you alright? Yeah, कर दिया इसने भाई. So that's how we landed up doing the. So I would scale you that he's a shadow of him. No question asked. Yeah. When you see him performing, it's the same category. क्या बात? And I am
I'm frankly speaking, I'm missing my brother Bappa Lahiri. Bappa had slogged like anything for the song. Yeah, he works very The hard. way he created that thing, Bappa throughout the songs, whatever I have done, so whatever we have done, उसने वहाँ मेरे को प्रेशर दिया है कि यार इससे और बेटर करेंगे, इससे और बेटर करेंगे, इससे और बेटर करेंगे. तो हर गाने में he wanted to go one notch up. So if he wants to go one notch up, I have to be one notch up than him. So we were racing each other, and we ended up creating some beautiful magic throughout the songs, whatever we did. तो वो एक था कि ये पैटर्न ये ऐसा होगा, वो पैटर्न ऐसा होगा. बहुत सारे conversation, discussion while shooting. We completed this song, and very fraction of days we shot that song. And frankly speaking, I never expected that he will rock like that. Rhythm to rhythm he गाएगा, नाचेगा. और हम लोग जो चिल्ला चिल्ला के उसको बोल रहे हैं while shooting it, it's a music video. He's listening and he's performing, so which is Catching up. which is very a very good veteran actor like anybody else. Grasping power. They do it like that. Very lucky to get a great uncle like Bappa. Who is actually So I would give a like music video created by Bappa like it was magical. And it's a full family project. Yeah. I mean, Bappa has done the direction, but Rego is the main. From my childhood, I have been there. It's a teamwork तो basically. वो वही था कि we do it passionately, otherwise we don't do it. Let's give a big round of applause for Mama. We are missing him. We're saying him. So, Sense, I think Sense can come this side enough for the media coverage. No, actually, you should come this way. No, that's fine. We have seen that. Please, Sense, you'll have to probably shift that side for a better, yeah. Okay. Come. So, Sense, tell us, yeah, I mean, Rego's launch and. I mean, I just heard its song. मतलब आने से पहले मैं कान में headphones लगा के सुन रहा था. मैं मतलब killed it. Honestly speaking, he rhymes, no doubt. Your first song, right? Bacha Party. Yeah, that was written by my brother. Oh. Ayush, yeah. And I heard his songs and I was like, सही कर रहा है. और 5 साल तो फिर खेल लेगा, I think. मतलब खेल ही लेगा, no doubt. And yeah, he rhymes. He's good with music. The best part was he did Stevie Wonder. That's a big thing in itself. I think उसके लिए ताली बजाना चाहिए. Attempting the song of Exactly. Such a Stevie big Wonder. legend, no He's doubt. a super legend, of And course. he's got his style, you know, he's got his own style. You know, that's very हाँ, मतलब पीछे Very वाले रॉक है, typical कुछ भी है, but he is in his own zone. कोई skills ऐसा ऊपर नहीं लेके जाना है, जो मैं हूँ वही गेम था. So I think pretty obvious. I loved it. Absolutely, क्योंकि इतने talented लोग हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत सारी बातें की, आगे बातें करते रहेंगे. ऐसे में I know आप feel कर रहे हैं कि थोड़ा सा jamming session भी होना चाहिए. When we have such musical people in the house, so Rego and Sense, jam something here. Do some jamming. सीधे excitement होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा और excitement ऐसे नहीं करेंगे वो लोग. You want them to perform? Yeah. एक बार. You want them to perform? Yeah. Let's do it, Rego. Take the mic. I have a rap. I made a rap. I'm going to sing a rap and you can add your own thing. Cool. Okay. You have anything in your head? Okay. We have developed a new rap. We both are going to sing. मेरे लिए ऑलरेडी लाइफ इज अ पजल और उस पे आ गया इनवाइट फॉर हसल. अभी तो 7 सुरों से दोस्ती की, रियाज कर के वॉइस पक्की की, सीधे डाल दिया रिंग में. इट्स ओके. रेगो भी आया है पूरा तैयार होके, बीट से और म्यूजिक से रिश्ता पुराना, साथ उसकी ब्लेसिंग जिसका फैन जमाना. हसल के नाम पे तो क्यों चिल्ला रहा है, तू उतना बड़ा नहीं जितना दिखा है. I'm not bragging, just telling you the truth. तेरे बॉडी वेट के जितने मेरे गाड़ी में गोल्ड पड़ा है. एक नंबर छोटे. अभी कहेंगे हमारे हाथ में कैमरा से हम ताली नहीं मार सकते, मगर हमारी भावनाएं जो हैं उनको और के साथ. No doubt that was a punchline. Come in front of the stage, man. Yeah, right. And dance देखो आ जाए आप. थोड़ा बीट भी करने से मजा आता है. Ladies and gentlemen, exclusively for the first time, Rego performing with Sense.
That makes Come on, me sir. my sense. Come on. Really careful. Come, Rego, live in front of you. On Be careful. You don't fall. Salman along with. Come here. 1, 2, 3, 4 मेरे लिए already life is a puzzle और इस पे आ गया invite for hustle अभी तो सातों सौ से दोस्ती की रियाज कर के voice पर की Okay, you continue then I'll switch out. सीधे डाल दिया रिंग में it's okay रेगो भी आया है पूरा तैयार होके बीट से और म्यूजिक से रिश्ता पुराना साथ उसकी ब्लेसिंग जिसका फैन जमाना हंस के नाम पे तू क्यों चिल्ला रहा है तू उतना बड़ा नहीं जितना दिखा रहा है I'm not bragging just telling you the truth तेरे बॉडी वेट के जितने मेरे गाड़ी में गोल्ड पड़ा है रफ्तार सोच मेरी सब एक में मुख्तलिफ मेरी आवाज मेरी ताकत आवाज मेरी आदत आवाज में सच्चाई आवाज मुकम्मल आवाज मयसर मैं आजाद परिंदा मैं दिल पे काशिक सीधी बात कर क्योंकि बातें बहुत है जो जान से ज्यादा वही मेरे साथ है नसीहत उस सबकी पर करता मैं मन की कहीं कहते दरिंदा मैं ख्वाबों में जिंदा कामा में अतरंगी ये आठवां अजूबा रिश्तों से दूर खुद की कश्ती में डूबा सब मिला मोहब्बत बस कम आबाद में शौक रख नवाब से ढींढ में हसरत ये आग सी जल ज्वाला बनेगा तू चल ये फलसफा याद रख शराफत से राख पर चले नकाबों में अमन तबाही दे तेरे इरादों से इलाही आवाज मिलेगा इंसानों में खून एक तो लड़ते क्यों धर्म पे लहरा मजनू की वो बातें पुरानी मोहब्बत ये चीज जो नफरत पे भारी जो है नहीं वो है कहीं मैं उस तलाश में जो मिली नहीं चाहत खूबसूरत बर्बादी मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी आशिकी ना किसी के बस में इश्क के सालिम जो तेरी ना मेरी सच अमेजिंग अमेजिंग रैप के बीच में एक इनके बीच में एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा उन पे हर गाने के लिए है जान प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के साथ सुमीति चौहान बड़ा बेसब्री से सुमीति जी आपकी वेट थी फाइनली देयर वार्म वेलकम वेरी गुड इवनिंग आई होप you are also having a great time like we all are having a great time रेगो का गाना लॉन्च I'm sure आपने देखा आपको कैसा लगा आप कुछ बताएं कुछ शब्द और रेगो प्लीज दिस ट्रैक Let me give him a hug. Congratulations. Thank you. रेगो I mean मैं बपीदा ने हमेशा फैमिली मुझे माना है पूरी फैमिली ने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है और मुझे ज़रा सा भी इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी कहने में कि मैं इस घर की बेटी हूँ दूसरी और बहुत प्यार हमेशा से दिया है मुझे यस एंड मैंने रेगो को बहुत ही छोटे से देखा है 6 महीने यस आई हैव हेल्ड हिम इन माय आर्म्स सो ही इज सो वंडरफुल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम दैट यू नो ही इज डूइंग व्हाट ही लव्स टू डू ऐसा ही होना था फैमिली में है और ये कौन सी फैमिली है इसका तो हमें अंदाज़ा है ही हम जानते हैं तो यहाँ से और कुछ नहीं हो सकता था और यही होना था आई जस्ट वांट टू विश रेगो ऑल द वेरी बेस्ट ही स्टार्टेड रियली यंग इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय younger days I just want to give all my blessings and love and I'm very happy to be here thank you for having me क्योंकि हम इनकी एल्बम का नाम है सुपरस्टिशियस तो हम सब ने अपने अपने सुपरस्टिशन शेयर किए हैं जैसे कि हमने रीमा जी को सैटरडे को ब्लैक पहनना बहुत पसंद एंड मोदी सर को वहां पे वेज बनना पसंद है सैटरडे सो व्हाट इज योर सुपरस्टिशन सर Oh, you're asking the wrong person actually. I don't have any superstition. I don't have them. But yeah, I can totally relate with those people who have them. So, good. It's good to have. It's good to be superstitious about something. Yeah, exactly. Right. And कभी ऐसा होता है कि गाना गाने से पहले कुछ हमारे माइंड में रहता है कि रिकॉर्डिंग से ये करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता कभी भी आपके लिए अच्छा गाना चाहिए बस यही लगता है So आज इस माहौल को देखे it's a great grand day for रेगो भी अगर गाने के साथ कुछ कहना चाहेंगे आप so what that song would be singing कोई भी गाना सुना देती हूँ क्योंकि गाने कम हैं when it comes to wishes
और अभी बहुत शुरुआत है. मैं सिर्फ एक छोटी सी even though he doesn't need it and he has the best family and people around him to tell him just don't forget that you are loved and nothing else matters. Just keep that love in your heart and wherever you want to go in life, wherever it could be. Someday tomorrow, maybe 15 years later you want to play football, go ahead and do that. So nobody's gonna judge you, but yeah, just be in the moment, feel it right now and just take yourself according to how you feel inside. Yeah, that's what I believe in. I believed in this all my life. मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा. एक्चुअली कुल मिला के हम सुनिधि की आवाज सुनना चाहते थे, तो मतलब कमाल का मजा आया गाँव में खड़े हो गए. थैंक यू सो मच सुनिधि फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर अस. एंड रेगो, आई नो हम सब स्पीचलेस हो चुके हैं, आप भी स्पीचलेस हो चुके हैं ना. सो आने वाली जो जनरेशन है, जो बहुत सारे लोग दे लुक अप टू यू एंड बिकॉज नाउ यू नो यू आल्सो सेटिंग एग्जांपल विद योर म्यूजिक. सो व्हाट एडवाइस वुड यू हैव फॉर पीपल अराउंड जो शायद आपकी उम्र के हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, बिकॉज शायद आप उनकी साइकोलॉजी अच्छे से समझ पाएंगे एट द एज ऑफ 30. सो व्हाट यू हैव टू से टू ऑल दोस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस? What I want to say is that just work hard and just whatever you want to, whatever field you want to become, like engineer, singer, dancer, musician, performer, just work hard and just listen to your parents, whatever they say, and do music for like how many hours. Just practice music, just hustle. I'm a hustler, and I just hustle with music. And for all the future generations who want to be musicians, singers, just work hard. That's my only key. Very nicely said. Before the media will ask questions, I would like to ask, ये कपड़े आप कैसे डिजाइन करते हैं? ये खुद करते हैं, इनका क्या राज है? ये मेरी दीदी माँ करती है, बिकॉज दीदी माँ दादू के लिए जो भी दादू पहनते थे सब दीदी माँ ने डिजाइन किया है. गोल्ड वोल्ड चेन वेन चश्मा वश्मा all credits go to दीदी माँ, और ये सब दीदी माँ ने किया है मेरे लिए. She's the woman behind Bappi Lahiri and Rego bhi. Exclusive, बिल्कुल. Well said. So I think we really had a great session, but I'm sure कि बहुत सारे questions you have in your mind, so guys you can put up the questions. देखो आपकी लुक को देखकर बिल्कुल बप्पी दा की याद आती है. बप्पी दा और गोल्ड का एक अलग ही रिलेशन था. आपको क्या गोल्ड इतना पसंद नहीं है जितना बप्पी दा को पसंद? मुझे गोल्ड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दादू जैसा गोल्ड पहने में मैं दादू से इंस्पायर हुआ चेन्स वेन्स पहनने के लिए, और दादू का लेगेसी मुझे फॉरवर्ड लेके जाना है. बट मुझे बहुत शौक है गोल्ड पहनने के लिए, दादू के जैसी मेरा शौक है, ऑब्सेशन है. सर कुछ गिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड में? अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि आज आप बिल्कुल एक रॉक स्टार लग रहे हैं और थोड़ा बड़ा होकर किसी फिल्म में हीरो एज ए लीड एक्टर आपको परफॉर्म करना? जरूर मुझे और मेहनत करना पड़ेगा और हसल करना पड़ेगा तो जरूर मिलेगा. ऑफ कोर्स आई वुड लव टू एक्ट इन अ फिल्म. वेरी गुड. हाँ, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स अभी सिर्फ वर्क हार्ड का भी बड़ा सिंगर बना है, दादू का लेगेसी लेके जाना है फॉरवर्ड, और साइड बाय साइड पढ़ाई भी करना पड़ेगा मुझे, और दोनों का बैलेंस करता हूँ एक साथ. मेनली म्यूज़िक है फ्यूचर प्लान, मतलब म्यूज़िक ही है, और मुझे मेरे मम्मी डैडी पूरे फैमिली को सब देना है बड़े होके. जो मैं रोज़ ड्रीम कर, मम्मी को ये दूंगा, डैडी को ये दूंगा, सब लोग को ये दूंगा, बड़े होके मैं सबको दूंगा. तो ये मेरा ड्रीम है, फ्यूचर प्लान. इसी बीच में before we go on next question, I would like to call upon stage Mr. Mahendra Verma जी. जोरदार तालियां हो जाएं. Please आ जाइए स्टेज पे, महेंद्र जी. हेलो.
मेरा ओके बप्पी दा का गाना आपकी आवाज माइक में थैंक यू बारी गए दिल में हो तुम आँखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं दिल में हो तुम आँखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहो पूजा करो सजदा करो जैसे कहो वैसे चाहो जानो मेरी जानो जाने जाना चाहूं थैंक यू देखो बप्पी दा ने जब शुरुआत की थी म्यूजिक की उस जमाने में इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था आज वक्त बदल चुका है काफी रियलिटी शोज है हर गली हर नुक्कड़ हर जगह आपको म्यूजिक गाते हुए म्यूजिक कंपोज करते हुए लोग यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे दिख जाते हैं तो कभी ऐसा महसूस हुआ बहुत प्रेशर है आपके ऊपर क्योंकि आप बप्पी दा के घराने से बिलोंग करते हैं मुझे कोई प्रेशर है ही नहीं क्योंकि मैं सब चीज़ को अच्छे से लेता हूँ और दादू के गाने में अभी कंपोजिंग करना भी सीख गया मैं अभी कंपोजिंग भी कर रहा हूँ दादू के जैसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर बन रहा हूँ और साइड बाय साइड सिंगिंग के साथ तो मैं कुछ प्रेशर नहीं लेता हूँ स्पोर्ट्स में कितना रुचि रखते हैं आप मुझे स्पोर्ट्स में क्रिकेट बहुत पसंद है मैं क्रिकेट फनाटिक हूँ और मेरे हॉबीज़ में सिर्फ क्रिकेट है और फुटबॉल भी है बट मोस्टली क्रिकेट है इस उम्र में आजकल लोग स्टडीज पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ऐसे में आप Sir, एक second, we'll just have a pause because बहुत जरूरी announcement है. Well, I think that we have somebody who needs no introduction. A singing sensation, a living legend who needs no introduction. The most prominent and successful playback singer. मेरा सौभाग्य है to call अलका याग्निक जी. अगर मैं कहूँ अगर तुम है अगर तुम साथ हो तो कुछ होता है जोरदार तालियों का अलका याग्निक जी. अक्सर हम इंट्रोडक्शन देते हैं बट कई बार ऐसे मौके होते हैं that you know we just go speechless. अलका जी warm welcome आपका हाथ. Sorry I'm late. I got stuck in some work. आपको साथ को माफ है. Just kidding. But आज रेगो के इस बड़े दिन पे आपको शब्द देना चाहेंगे अलका जी. इसको तो मैंने गोद में खिलाया है और ये जब से देखा उसको तब से ये गोल मटोल ऐसा ये बहुत क्यूट और अभी भी क्यूट है और रहेगा क्यूट. He reminds me so much of दादा. वही छाप है दादा की. And I wish him all the success, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार. I think he's doing well and he's got the gift of the gab जैसे कहते हैं ना एक होता है खून में कि he has a way with I think people love him and बहुत इसकी he's very famous on the social networking and बस मेरे तरफ से जितना प्यार जितना आशीर्वाद जितना सपोर्ट हो सकता है मैं हमेशा करूँगी और दादा was my दादा he was my very strong support और बहुत प्यार करते थे दादा और बस उनकी यादें हैं हमारे साथ और हम चाहेंगे कि रेगो बहुत नाम करे. दादा will be smiling up in heaven. हमने सबसे सवाल पूछा है कि एल्बम का नाम सुपरस्टिशन है तो आपका कोई सुपरस्टिशन हो लाइफ में या गाना गाने से पहले कोई ऐसा? सुपरस्टिशन तो कोई की कमी है क्या हमारे देश में? नहीं पर हमारे दोस्त को हमने आज काले कपड़े पहने हैं और अरे वो सबसे बड़ा स्टूपिड सा सुपरस्टिशन जो सबको होता है बिल्ली रास्ता काटने वाला. मतलब बट मेरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट्टर विश्वास ऐसा नहीं है बट हाँ एक बार थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ दिख गया तो लगता है कि थोड़ा रुक जाते हैं ताकि वो कट
कट गया है। एक बीड़ी यहाँ रास्ता काट रही है। लग रहा है वही मैं देख रही हूँ। चलिए कोई नहीं, बहुत बड़ी बिल्ली है ये। बट ऐसे पर्सनल मत होइए यार, ठीक है? ओके मैम, अगर कुछ एक लाइन हो जाए, वो एक्चुअली वो सब वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। एवरीबडी वांट्स टू हैव योर, मैंने हम लोगों को क्या वो एक अपना वो देना पड़ता है प्रूफ कि हम वही हैं। अच्छा कहा। सावली सलोनी तेरी सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। पर सावली सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें, कर दिया तूने मेरा प्यार में जीना मुश्किल। कसम से इन सब का यही मकसद था। ओके बाय, मजाक कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम एंड देन बीइंग पार्ट ऑफ दिस सच ग्रेट डे फॉर My रेगो pleasure, my एंड pleasure. एंड कुछ सवाल जो आप पूछना चाहेंगे आप प्लीज कंटिन्यू करें। मेरा सवाल बाकी रह गया था, आप एजुकेशन, स्पोर्ट्स और म्यूजिक किस तरह से मैनेज कर पाते हैं तीनों चीज़ों के साथ? मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ बैलेंस करता हूँ म्यूज़िक को, पढ़ाई को, क्रिकेट को। हाँ बैलेंस करता हूँ क्योंकि सब एकदम वेल टू डू है। वेलकम। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मम्मी छोड़ती नहीं पढ़ाई। Very strict. As you are taking the legacy forward, what about the gold legacy? क्योंकि पप्पी का हमेशा गोल्ड पहनते थे। ओके, सब लेट हो गया। नहीं, I just When I grow up, I'm too small. हम जानना चाहेंगे कि आपको देखकर पप्पी दा की याद तो बिल्कुल आती है, लेकिन आपने संगीत की शिक्षा लेनी कहाँ से शुरू की और अभी क्या वो फ्यूचर में मतलब सॉन्ग प्रोड्यूस करना चाहेंगे या फिर ऐसे ही गाना चाहेंगे और उनकी लिगेसी को मेंटेन करना चाहेंगे? और साथ ही एक क्वेश्चन ये है कि एक अलग तरह का कुछ गाना आप लेकर आएंगे आगे चलकर या फिर ऐसे ही पप्पी दा जैसे पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स मैं दादू का लेगेसी लेके जाऊंगा और मैं कंपोज भी कर रहा हूँ गाने, और मैं 2-3 साल में कोई यूनिक बीट्स और यूनिक टाइप के गाने मैं रिलीज़ करूँगा। मेरे ओरिजिनल्स बहुत सून आने वाले। और जो म्यूज़िक का जो शिक्षा दादू ही मुझे देते थे, दैट जब भी किधर जाओगे बड़े प्लेटफॉर्म में, जब हम्बल रहने का, ज़्यादा दिखाने का नहीं, दैट बी हम्बल, बी ग्रेटफुल एंड हैव ग्रैटिट्यूड। तो दादू मुझे हर टाइम ये बोलते थे म्यूजिक के शिक्षा से। सो यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। तो गोल्ड के सवाल से पहले गोल्ड गिफ्ट करना पड़ेगा आपको, तभी सवाल पूछ पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, बट प्लीज वेट बिकॉज़ वी हैव वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स अ लॉन्च। बट बिफोर दैट आई विल कॉल ऑन स्टेज मिस्टर गोविंद जी once again on stage. जोरदार तालियां हो जाए। I request all the guests to please come forward before we do the launch. So वो लॉन्च क्या है और मैं चाहूंगा कि गोविंद जी, रीमा जी आप सबको बताएं। Shall we? Yes guys, lights on. And ये लॉन्च क्या है? मैं चाहूंगा गोविंद जी और रीमा जी आप सबको बता दें।